ابھی چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنڈے کا فاتحہ بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل نبی اولاد نبی ہیں اور آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ آپ بہت ہی نیک، پرہیزگار، متقی، عابد و زاہد تھے اور آپ ہی کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ہی کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ، ہم تمام حنفیوں کے امام، 2 سال تک ان کی خدمت میں رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی سمجھ لیجئے کہ قیمت وصول ہو گئی۔ ہم نے جو 2 سال ان کی خدمت میں رہے ہیں، 2 سال ہم نے ان کی خدمت گزاری کی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میری کامیابی کی کل عمر سمجھ لیجئے کہ 2 ہی سال ہے، کیونکہ حضرت کی خدمت کرنے کا مجھ کو موقع ملا ہے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ وہ تمام حنفیوں کے امام ہیں، تو خود ذرا غور کرے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ خلیفہ بغداد منصور، وہ ہمیشہ علماء کو بلاتے اور اس کو اپنے انڈر میں رکھنا چاہتے کہ سب میری واہواہی کرے، سب میری تعریف کرے، ہاں، اور سب مجھے داد و تحسین سے نوازے۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ یہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاتے تھے، نہ ان سے کوئی غرض تھا ان کو۔ یہ تو اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں مصروف رہتے تھے، تو انہیں بہت غصہ آتا تھا کہ ہم انہیں دعوت بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں آتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ہمارے قدموں تلے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ایک ارادہ کیا کہ اس بار انہیں بلایا جائے، اگر وہ آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کے ارادے سے چنانچہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آن بان شوق کے ساتھ ان کے دربار پر آئے۔ آنے سے پہلے ان لوگوں نے خوب اچھی طریقے سے پلاننگ کر لیا۔ پلاننگ یہ کیا، منصور نے سوچا کہ ہم کسی بھی طریقے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتوں میں الجھائیں گے، انہیں غصہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ جب انہیں غصہ آ جائے گا تو ہم اپنے سر کا تاج اٹھا کر کے رکھ دیں گے، اور سر کا تاج اٹھانے کی دلیل یہ ہوگی کہ تم اس کو قتل کر دینا۔ اور سب کو کیا کیا، جگہ جگہ پہ ننگی تلواروں کے ساتھ تعینات کر دیا۔ ادھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملی۔ آپ ہمیشہ انکار کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے انکار نہیں کیا، چلے آئے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ خلیفہ منصور اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ منصور اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے استقبال کے لیے چلے گئے۔ بڑے آن بان سال کے ساتھ ان کو بلایا، ان کی تعظیم کی، ان کا عزت کیا، ان کا احترام کیا، اور ان کے سامنے سمجھ لیجیے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر بڑے آن بان عزت کے ساتھ ان کو رخصت بھی کیا۔ جب وہ چلے گئے تو جو حضرات ننگی تلواروں کے ساتھ تعینات تھے، انہوں نے کہا کہ حضور معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے تو ہم کو یہ حکم دے دیا تھا کہ جب وہ آئے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن معاملہ پر اس کے برعکس نظر آیا، آپ تو خود ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو خلیفہ منصور نے کیا کہا تھا، سنیے، کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا اژدھا تھا، بہت ہی بڑا اژدھا تھا۔ اس کا ایک جبڑا میرے تخت کے نیچے تھا اور ایک جبڑا اوپر تھا، اور اس نے بزبان حال مجھ سے کہا کہ اگر اللہ کے ولی کی ذرا سے بھی گستاخی کی اور ذرا سے بھی بے حرمتی کی تو ہم دونوں جبڑے کو ملا دیں گے، پھر تمہارے تختوں کو تمہارے سمیت تہس نہس کر دیں گے۔ اس لیے میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ ہم آخرت کو تو برباد کر ہی رہے ہیں، اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ ان کا دھرا کا دھرا رہ گیا، اور یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے ہم کنڈے کا فاتحہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہوئی تھی 15 رجب کو ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ کتنے 22 رجب کو فاتحہ مناتے ہیں۔ یہ ہمارے بیچ رائج ہو چکا ہے، جبکہ ان کی وفات 15 رجب المرجب کو ہوئی ہے، لیکن چونکہ فاتحہ ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، چاہے 15 رجب ہو چاہے 22 رجب ہو، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات بتا دوں
کہ कोंडे के फातिहा में हमने बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें शामिल कर लिया है और बहुत सारी नाजायज़ रसूमात को शामिल कर लिया है। वो ये है कि फातिहा 22 रजब को ही कर सकते हैं। फातिहा के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इस्लामी भाई क्या करते हैं, इस्लामी बहनें करती है कि उसके लिए नए तरीके से घर को पेंट किया जाता है, वो पूरी पकाया जाता है, खीर पकाया जाता है, मिट्टी का बर्तन ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क़ुयूद लगा देना, शर्त लगा देना कि नहीं घर ही में फातिहा हो सकता है, खीर पकौड़ी बाहर नहीं जा सकता है, ये सारी चीज़ें गलत है, जहालत वाली बात है। फातिहा या ये मिलाद में ये सारी चीज़ें गलत है। फातिहा किसी शेरनी का या फातिहा किसी जगह का मोहताज नहीं है। अगर आपके पास मैसर है, अल्लाह ताला ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, तो आप जितना चाहे इंतज़ाम करें, खाना खिलाएं, गरीबों में कपड़ा बांटें। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पानी पर भी फातिहा कर सकते हैं, नमक पर भी फातिहा कर सकते हैं। पानी तो बहुत सस्ती चीज़ है, उस पर भी फातिहा कर सकते हैं। लेकिन हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, हमारी माँ और बहनों को क्या हो गया है, बेजा रस्म फातिहा में शामिल कर दिया है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कोंडे में ये शर्त लगा दिया कि नहीं, जो मिट्टी का बर्तन होना ही चाहिए, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत है। उनको भी पसंद था, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था, लेकिन नहीं है, किसी में भी कर सकते हैं। और हमारी बहनों ने ये भी एक गलत रिवाज आम कर दिया है कि ये फातिहा का सामान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर ही होना चाहिए, घर ही के अंदर खाइए। ये गलत बात है। अगर हमारे पड़ोसी में कोई बीमार है, वो आ नहीं सकता है, तो क्या वो नहीं खा सकता है? फातिहा का सामान है, इसके खाने से शिफा मिलती है और बहुत सारी चीज़ फ़ायदा की चीज़ है, तो ये कोई भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और एक रिवाज तो यहाँ तक आ गया है कि कोंडे की फातिहा में जो खीर पूरी पकाया जाता है, तो पूरी में क्या करते हैं, कुछ पैसे उसे सिक्के उक्के डाल देते हैं, और जिनके पास वो सिक्का आता है खाने के दौरान, तो समझ लीजिए वो भाग्यशाली माना जाता है, किस्मत वाला समझा जाता है। ये कहाँ का दुरुस्त है? ये सारी चीज़ें गलत है। उसके अलावा हमारे में एक गलत रस्म ये है कि जब तक हम अगरबत्ती या फिर यूँ कह लीजिए कि फूल माला बहुत सारी चीज़ें हम रख नहीं लेते, तब तक फातिहा स्टार्ट नहीं करते। अगरबत्ती खुशबू के लिए जलाया जाता है, अगर नहीं है तो भी फातिहा हो सकता है। ये सारी चीज़ें गलत है। लेकिन अगर एक बात हम जो हकीकत है उसको बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा गुस्सा। वो ये है कि अगर फातिहा देने वाला कोई नजराना की बात आए तो 5 रुपया 10 रुपया निकलेगा, है कि नहीं? हर घर का किस्सा हो गया है। और उमूमन बड़े बड़े शहरों में भी 10 रुपया 20 रुपया निकलता है। फातिहा में इतनी सारी चीज़ों का इंतज़ाम, खीर पूरी रात भर बनाए जाएंगे, है ना, सारी रात बेदार रहेंगे, सोएंगे नहीं, और हज़ारों रुपया खर्च करेंगे। उसके लिए घर को भी पेंट करेंगे, नया मुसल्ला होना चाहिए, नई तस्वीर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब फातिहा देने वाला कोई इमाम आता है, आलिम दीन आता है, तो नजराना जानते हैं उसका क्या होता है? 10 रुपया होता है, 20 रुपया होता है। ये डूब बनने की बात है, शर्म की बात है। आलिम दीन को दीजिएगा तो उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी पेट हैं, उनकी भी ज़रूरत है, तो उनका ख्याल हमको रखना चाहिए। उनके ख्याल को, उनके ज़रूरत को बल्कि सबसे पहले हमको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो आलिम दीन का, इमाम का, मुअज्जिन का, इस तरह से हम दामे दिल में कदमे सुखने अगर हम उसका ताउन करेंगे तो उसका घर बार अच्छा चलेगा। भाई हम गहरे आदमी को दे देते ना, फ़कीर को, बेवा मिस्कीनों को दे देते हैं ना, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं देते हैं, अल्लाह के नाम पे मांगता है, किसी को भी हम दे देते हैं। और बसा औकात तो हम कभी ऐसे लोगों को भी देते हैं कि जो शराबी होता है, जुआरी होता है, फ़कीर ढंग का फ़कीर नहीं होता है, असल शरई फ़कीर नहीं होता है, शराबी जुआरी को हम पैसा दे देते हैं। तो क्या इमाम उससे भी ज़्यादा गया गुजरा है, फ़कीर से भी ज़्यादा गया गुजरा है कि जब वो फातिहा करे, अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह की किताब पढ़े, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ खैर करे, मग़फ़िरत की दुआ करे, उसको 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे। बसा औक़ात तो बड़े बड़े लोग जो है ना, उन्हें कुछ भी पैसा नहीं देते हैं, खाली लौटा देते हैं। एक बात बता दूं, जब मैं झारखंड में था, बहुत ही दिलचस्प बात बता दूं, झारखंड में था, मैं जब इमामत कर रहा था, तो एक भाई साहब आए, जबकि मैं सो रहा था, उन्होंने मुझे जगाया, आओ फातिहा देना, आओ फातिहा देना। मैं बोला क्या हो गया ऐसी बात के, तुम इतना मतलब बेचैन फातिहा के लिए? किसी से भी फातिहा कर सकते हैं? नहीं, इमाम से ही फातिहा किया जाता है। अच्छा ठीक है, कपड़ा पहना और जो भी थे, जुब्बा उब्बा पहना, पगड़ी उगड़ी के साथ गए, क्योंकि जब भी बाहर जाना होता है तो अइम्मा हज़रत इन चीज़ों का ख्याल रखता है, इतर हो, टोपी हो, लिबास हो, ख्याल रखता है। बड़े उम्दा किस्म के लिबास पहने, अमामा बांधा
और फातिहा करने के लिए गए। और जानते फातिहा किस चीज़ पे किया जा रहा था? वो घर का छत डाला जा रहा था, तो घर के छत के लिए फातिहा किया जा रहा था कि पहले फातिहा होगा तभी छत की ढलाई होगी। ज़रा देखिए, फातिहा के लिए तमाम वर्करों को, तमाम कारीगरों को रोक दिया गया था, नहीं जब तक फातिहा नहीं होगा तब तक छत के ढलाई का शुरुआत नहीं होगा। अब बताइए कि फातिहा कितनी अहमियत की चीज़ है ना, कि जब तक फातिहा नहीं होगा, मसाले नहीं डाले जाएंगे, सीमेंट नहीं डाला जाएगा, गिट्टी बालू नहीं डालेगा, छत की शुरुआत नहीं होगी। इतना फातिहा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं अपने बात बता रहा हूँ कि जब मैं फातिहा किया, और कहाँ, वो भी नहीं घर पे नहीं, वहीं उसी जगह सीढ़ी पे चढ़ के, बांस की सीढ़ी पे चढ़ के, उसी पे जहाँ पे सेट किया जाता है, सारे चीज़ सेट किया जाता है, उस पे चढ़ा, काफ़ी दिक्कत के साथ, पगड़ी अमामा टोपी के साथ चढ़ा, और उसी धूप में बैठ करके, सेंटरिंग में बैठ करके, लोहे में बैठ करके फातिहा दिया। और जानते हैं मुझको क्या दिया था? वल्लाह बता रहा हूँ, बताने में शर्म आती है। ये आज हमारी कौमों का हाल है। हमें 10 रुपया निकाल करके दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। पैसा तुमसे किसने मांगा भाई? पैसा नहीं देते, तुमसे मांगा किसने? नहीं देते, लेकिन 10 रुपया दे करके हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? इतना दो इमाम को कि आपको देने में अच्छा लगे और इमाम को लेने में अच्छा लगे। बताइए, फातिहा इतने इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके बगैर सारे काम को रोक दिया गया है, और जो फातिहा कर रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये हमारी कौमों का हाल है। खुदारा अपनी नीयत को साफ कीजिए, अपने अइम्मा की तरफ तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, वरना क़यामत में आपकी गिरफ्त काफ़ी ज़बरदस्त होगी, फिर आप कामयाब होने वालों में से नहीं होंगे।